करेंटली जो चीज़ दिल्ली एक्साइज केस के साथ में हुई है और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के साथ में हुई है, उसको लेके ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में चल रही है कि ईडी के ऊपर बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. सो डू यू थिंक यहाँ पे चेंज ये हो जाता है कि वहाँ होता है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और यहाँ उल्टा हो जाता है कि गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट. Way back we have stopped मतलब I have stopped judging my clients. And I think every woman should pursue law for at least 2 years in practice. Yeah, actually, she would be a much better woman. She would be a much bolder woman and much confident woman. But I did not have the guts to contest it. I could not have, in my good conscience, went before the court and said, he's not guilty. The allegations are so abhorring. What do you say? Appalling. So this is all just fuzz. Welcome back on the Second Inning podcast. आज वापस हमारे साथ हैं एडवोकेट ऋषि श्रीवास्तव एंड एडवोकेट पूर्वा महाजन, और इनके साथ इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं पीएमएलए जैसा लॉ, ईडी वाला डिपार्टमेंट एंड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, इंक्लूडिंग द रीसेंट अरेस्ट ऑफ द सीएम ऑफ दिल्ली. इस पॉडकास्ट में हमने इन चीज़ों को कवर किया है. इसके साथ में हमने एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी चेंज या शिफ्ट की बात कर लें, इन चीज़ों के बारे में भी बात करिए कि एक लॉयर का प्रोफेशन परस्यू करने पे एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन क्या चेंजेस आते हैं एक इंसान में. हमने इसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाके वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात करी है, जो पूर्वा मैम ने काफ़ी सही तरीके से शेयर करी. तो फाइंड आउट करने के लिए कि वो क्या थी एंड फाइंड आउट करने के लिए कि लॉ के या लेजिट लॉ के या एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा केस जो पिछले कुछ टाइम से न्यूज़ हेडलाइंस में बना हुआ है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है, एक राइटफुल वे इसका क्या है इसको देखने का. अगर इन चीज़ों को आपको एक्चुअली सही तरीके से समझना है तो इस पॉडकास्ट को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. इस एपिसोड की और डिटेल्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं. एंड मेक श्योर यू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. Stay tuned. See you on the other side. Okay, sir, ma'am, now let us resume our conversation. Now at this segment we will start with the Delhi excise policy case and the powers of ED. But before that हमको PMLA का एक प्री रिक्विजिट लेना पड़ेगा, क्योंकि PMLA काफ़ी यूज़ आएगा इन दोनों चीज़ों में, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में भी, इंक्लूडिंग द रिसेंट अरेस्ट ऑफ द दिल्ली CM and powers of ED में भी. So let us first talk about PMLA. तो PMLA का एक बेसिक इंट्रो. See, अपन ने भी foregoing past discussion में अपन ने PMLA थोड़ा डिस्कस करा ही था. But just to know, PMLA is used for prevention of money laundering. And money laundering is normally used in crime. कि जो ब्लैक का पैसा आता है उसको अपना लॉन्डर करने की कोशिश की. Right. And therefore this act is meant so that people who are committing the crime, और जो पैसा आ रहा है उस पैसे पे रोक लगाकर उस क्राइम को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. Once the criminal knows that I won't be able to use this money, what's the use of committing a crime? Right. So this is the larger intent of the legislature in formulating such a law. And also the loss to the exchequer also is there. If a large sum of black money is there, then it is not the tax or the part of it is not going to the state. So there is a loss to the public exchequer also. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब 2002 में आया था, मतलब PMLA एक्ट, it was about to combat money laundering related to illegal activities like drug trafficking, smuggling and terrorism financing. But in today's context, क्या ये चीज़ broad हो गई है कि अभी भी इन्हीं के around relevant है? See, it's like an evolution of a law. Every law first comes into force and thereafter evolves. With time. With situations. And it was meant for this drug peddling and everything. But later on they realized that the large number of proceeds of crime are also arising out of different acts. Like corruption is there, out of corruption it is also rising. So in that regards also it has evolved and it has included these acts or criminal acts, I can say. Now let us first discuss towards going to the allegations
टू पीएमए कि पीएमएलए पे क्या एलिगेशंस लगते हैं या पीएमएलए पे हमको जो डिस्कस करना है, उसके पहले लेट अस टॉक अबाउट द पावर्स ऑफ पीएमएलए, दैट पीएमएलए क्या क्या पावर्स देता है, मतलब पीएमएलए एक्ट के अंदर व्हाट आर द थिंग्स विच ऑर्गेनाइजेशन और विच lawyer can use against the accused. Lawyer never uses his powers. These powers are used by the officers of Officers of Enforcement particular Directorate. ED, Directorate. right? Yes, yes. Yeah. So what are these powers of PMLA? They have vast powers. All the powers of CRPC plus some additional powers for arrest and search and seizures. ये powers access होती है and it is upon the knowledge. If the director believes something to be there, he can go and arrest. ओके, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट, इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है. See, these powers are already given in CRPC for any crime, and the powers of CRPC are already vested in the officers of PMLA, means ED. But additionally, they have also been given powers that if they believe something to be true, they can go and arrest. If they think something to be true, they can call for this explanation, and they can seize the documents. Basically, how do you launder money? You leave a vast document trail. So they can always go and seize such documents and call for the explanation how you prepared these documents. And arrest को लेके भी काफ़ी चीज़ें. Yes, if the officers believes that such person has committed such a crime, he can always go and arrest. FIR की भी requirement FIR की requirement है. FIR की बिल्कुल. Okay. And जो arrest है, arrest हो जाती है, arrest easily हो जाती है, and then bail. Bail के ऊपर PMLA पे काफ़ी बड़ा एक allegation लगता है that what is so special about PMLA that bail is not granted. No, this allegation is basically wrong. Wrong. See, yes, because although PMLA जो officers होते हैं ED के, they are employees of the state, the government, I mean to say. The central. Yes, central government. But ultimately, the grant or non-grant of bail lies upon the courts, and there is no such allegation against any court. It's allegation हो नहीं सकता कि allegation हुआ ही नहीं. हुआ ही नहीं है. There is no allegation against the court. Because, see, grant and non-grant of bail is sole domain of the court. The officers of ED cannot grant you bail. They cannot arrest you. This is within their powers. But once arrested, the bail has to be granted by the court of law. And court will weigh each and every evidence at their disposal. The case is the case put forth by ED might be very strong, solely for the reason that they have settled that this money laundered, the proceeds of crime has been used in laundering of money. If they have proven that, then court would be reluctant to grant you bail. एंड शायद ईडी को कुछ अरेस्ट के बाद में पर्टिकुलर डेज का टाइम भी मिलता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. 60 डेज का ऐसा कुछ रहता है. नहीं, दैट इज नॉर्मल फॉर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. नॉर्मली जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लास फर्स्ट क्लास के सामने प्रोड्यूस करना है. जो नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सीआरपीसी इज आल्सो फॉलोड हियर. बट द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आर चेंज्ड, द प्रिजम्पशन इज चेंज्ड, द बर्डन ऑफ प्रूफ हैज चेंज्ड. क्योंकि once it is settled कि proceeds of crime has been used, then the presumption works against you. And accused के ऊपर की एक और एक चीज that accused has to prove himself innocent. And until proven innocent, he is assumed guilty by the court itself. Yes. So ये काफी बड़ा वर्ड है. There is a prerequisite okay, to that. The prerequisite is that once it has to be settled that the proceeds of crime has been used, and if it has been proved that some proceeds of crime has been used in such so and so, then there would be a presumption against the accused. क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट को ये पता लग गया है कि वहां पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यूज हुई हैं, तो अल्टीमेटली प्रिजम्पशन कोर्ट कर लेगा कि आपने अगर प्रोसीड ऑफ क्राइम यूज करी तो यू आर गिल्टी, यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट होल. नॉर्मली जब कोर्ट अपन क्रिमिनल लॉ की बात करें तो प्रिजम्पशन इज ऑलवेज ऑन द स्टेट टू प्रूव गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. Here the burden upon the prosecution is to show that proceeds of crime has been used in particular offense. So once they are able to satisfy that burden, the presumption goes against you. General criminal law में it is you are innocent until proven guilty. And here it is no. General law के अंदर the burden is to prove you guilty. Here the burden is to show that proceeds of crime has been used. कि अवैधानिक तौर से कमाया हुआ पैसा यूज किया गया है, बस उनको ये दिखाना है कि साहब इनके द्वारा अवैधानिक तौर से कमाया हुआ पैसा यूज किया गया है. और ये बर्डन पीएमएलए के केस में ईडी के ऊपर है. ईडी के ऊपर. एंड जनरल मतलब क्रिमिनल, एक जनरल क्रिमिनल केस में पुलिस के ऊपर, प्रोसिक्यूशन के ऊपर. बट यहाँ पे चेंज ये हो जाता है कि वहाँ होता है इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी,
और यहाँ उल्टा हो जाता है कि PMLA. guilty unless proven innocent. Once it is found that बस money laundered. क्योंकि अगर ये सेटल हो गया कि भैया लॉन्ड्रेड मनी यूज करा है तो ऑब्वियसली द प्रिजम्पशन विल गो अगेंस्ट यू. तो इस चीज़ का जो डिसएडवांटेज, क्योंकि पीएमएलए में ऐसा होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में जितने लोग, जैसे कि हम इसके पहले भी जब बात कर रहे थे कि कुछ लोग अननोइंगली भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो पीएमएलए जब एक्ट होता है तो वो अननोइंगली इन्वॉल्व लोग भी. See, presumption does not mean that you are going to get convicted. It is a rebuttable presumption. By virtue of evidence and by conducting the trial properly, you can show that I was not in the knowledge that these are the procedures of crime that I have used. So the presumption is always rebuttable. Rebuttable mean to say that the burden can always be हाँ, shifted. वो जब तक कन्विक्ट हुआ नहीं है तब तक you have time and you have an opportunity To to rebut prove the yourself. yes, and you can always shift the burden to the other side by showing your case better than them by virtue of evidences. देखिए, आपने अगर सही तरह से पैसा लगा करके खरीदा है, सही पैसा लगा है, एक लीगल पैसा था आपका, तो आपके पास उसका जो डॉक्यूमेंट्री ट्रेल होगा इवन बेटर होगा. आप वो जब कोर्ट के सामने रखेंगे तो फिर वो चीज़ जो है वो प्रिवेल करेगी ओवर द अदर डॉक्यूमेंट. अगर ये चीज़ें पेपर वर्क पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, इतनी ज़्यादा कि कम्प्लीटली ही पेपर वर्क पे डिपेंडेंट पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है. सो इसमें कन्विक्शन रेट या फिर इसमें the ability to solve these type of cases should be better, but then why these Talk type about of paper cases trail. gets more complicated? Because the papers are so many. When we talk about these cases, see, normally cases comes out of Prevention of Corruption Act and so and so. So the charge sheet of such cases are like 4,000, 5,000 pages. The number of witnesses are like 100 and 200. एंड प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व. Yes. बिकॉज आपने मनी, देखिए आज अगर मैं आपके सामने एक नोट का बंडल रख दूं तो आप ये नहीं कहोगे कि ये लॉन्ड्रेड मनी है या ये लीगल मनी है. ठीक है, वो तो बुक्स में दिखता है कि ये लॉन्ड्रेड मनी है Documents में या दिखता है, right? सो सीए हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, इवन आई डोंट नो इफ एनी एडवोकेट्स आर इन्वॉल्व. वो कैसे इन्वॉल्व हो जाएंगे? प्रॉपर्टी के पेपर्स बनाने में इन्वॉल्व. To see, to help the prosecution also. Prosecution वाले जो बैठे हुए हैं, they are also not experts of this field. तो वहाँ पे भी उनको CAs की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे भी वकीलों की जरूरत पड़ेगी to just find out कि whether this money is proceed of crime or genuinely earned money. और जो लोग एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं वो भी अगर इतना ज़्यादा मनी लॉन्डर कर रहे हैं, so obviously they are using some professionals Some as expert well है, yes. to make things look like they are well documented. Yes. एंड दिस, ये जो अपन कह रहे हैं कि ये पैसा, मतलब उनके खातों में जो पैसा है, उनके पास जो पैसा दिख रहा है वो पैसे की बात हो रही है. तो एक तरह से तो वो लीगल सिस्टम में एंट्री तो कर चुका है. वो एंट्री कैसे करी? हाँ, You have to but go to the एंट्री root गलत cause of थे. that. हाँ, तभी तो वो इकोनॉमिक सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है. दैट वाज द मेन फोकस ऑफ पीएमएलए, जिसकी Yes. वजह से वो आया Yes. 2002 में. और इसमें साइबर का भी एक बहुत बड़ा रोल आजकल हो गया है, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो कहीं ना कहीं इसमें साइबर का भी काफी बड़ा So एक- how do they trace that map of money which is now entered the system, but once it was maybe laundered? That is intel. And that is within the Intelligence. domain of the CAs, not lawyers. We come after the dispute has arisen, we come after the charge sheet has been filed. Prior to that, it's all accountants. तो वो पैसे का जो ट्रेल है, उसका जो ट्रैक है, वो एक सीए के थ्रू ही पता मैनी चलता टाइम्स इसमें क्या होता है, मेजरली जो होता है ना, जैसे प्रॉफिट जो होता है, आप इस तरह का बिजनेस करें इसमें आपको 10% प्रॉफिट होता है, वो उसको दिखाएंगे हमें 50% का प्रॉफिट हुआ. And fit with time, क्या आपको हर साल 2% का प्रॉफिट हो रहा है, एकदम से आपको 20% का हो गया. तो these are the anomalies which are required to be detected. और जो बता रहे हैं मैम कि वो साइबर का भी यूज होने लग गया, क्योंकि नाउ दिस प्रॉफिट्स आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. कि जब आप अपने ई टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, चीजें छुपाने के तो वो एनोमली वहाँ पे निकल जाती है. ये राइट. तो वो इस तरह से लॉन्डर किया जाता है पैसा, कि या आपने कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा रेट में खरीद ली है और उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पैसे दिए, तो वो पैसा कहाँ से आया, और ये इस तरह से उसको ट्रेस किया जाता है. इस मनी ट्रेसिंग के पीछे अगर हम पीएमएलए का हटा दें कि मान लीजिए पीएमएलए का एक्ट लग रहा है, ईडी लगा रही है और अब ईडी सर्च कर रही है, ये तो सेपरेट हो गया. बट इन जनरल अगर एक नॉर्मल इंसान के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है और वो कहीं खर्च कर रहा है और वो कहीं इनकम टैक्स में मिलता है, तो टैक्स क्या देना पड़ेगा ना उसका. उस रास्ते से भी पीएमएलए कहीं अप्लाई होता है? नहीं,
उस अगर रास्ते से आपके पास नहीं अभी 1 करोड़ रुपए आ जाए, हाँ। सबसे पहले आपको उसमें टैक्स भरना पड़ेगा। हम्म, आप टैक्स भर के बताएंगे मेरे पास पैसा कैसा आएगा, हम्म, और जहाँ से पैसा है उनको अपनी बुक्स में शो करना पड़ेगा कि हमने उनको पैसा दिया है, हम्म, और उनकी बुक से ये समझ में आएगा कि whether they were competent to give you that money or not. या Like for example KBC की बात कर लें अपन, हम्म, वो अमिताभ बच्चन सब साइन करके दे देता है, हम्म, the checks and everything, you get the money. तो ट्रेल सेटल्ड है वहाँ पे कि हाँ उनके पास पैसा है इतना for this purpose and they have been paying you money because of this. हम्म, और वहाँ पर तो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ही हो जाता है। हाँ। मतलब आपको 1 करोड़ रुपए अगर देते हैं तो वो टैक्स वैक्स काट पीट के हाँ, देते हैं। राइट। सो ये है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक बैग से भर के पैसा दूं 1 करोड़ रुपए, हम्म, आप खर्च करने जाओ, इनकम टैक्स आ जाएगी। yes definitely. नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि वहां से जैसे कि इनकम टैक्स आ जाएगी, तो ऐसे इनकम टैक्स आई, उसने पूछा पैसा कहाँ से आया, तो क्या उनके उस इंटरोगेशन प्रोसेस के थ्रू क्या कभी मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेस हुई है या अगर फिर फाइंड आउट होती है? कभी क्रिमिनलिटी उसके अंदर आ जाती है कि हाँ आप ये तो बोलोगे नहीं कि मैंने उसको मर्डर करा था, उसके मर्डर की फिरौती में मेरे को इतना पैसा आया हाँ, था, ये तो आप कभी बोलने वाले हो नहीं। राइट। लेकिन कभी क्रिमिनलिटी फाइंड आउट होती है तो बिल्कुल तो फिर वो केस फिर इनकम टैक्स से Criminal- ED की तरफ, पीएमएलए की तरफ ईडी के बाद में पास में बाद में जाएगा, पहले वो जाएगा क्रिमिनल के पुलिस के पास में। पुलिस के पास। पहले वो एफआईआर रजिस्टर होगी, जब एफआईआर के अंदर ही फाइंड आउट हो जाएगा कि आपने क्राइम करा है, एंड दे माइट गो टुगेदर साइमल्टेनियसली आल्सो, कि जैसे एफआईआर रजिस्टर हुई वैसे ही ईडी ने भी आपके अगेंस्ट में पीएमएलए रजिस्टर कर लिया, एंड दे माइट गो वन आफ्टर द अदर आल्सो। सो ईडी की पावर्स बढ़ जाती है जब पीएमएलए का कॉम्बिनेशन उसके साथ बैठ जाता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब ये जो ऐसा ही है, कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन ही यही है, यस। द होल पर्पस ऑफ ईडी वाज टू एनफोर्स दिस पीएमएलए। सो इसके साथ में उसकी पावर्स इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी कभी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस भी हो जाती है। नहीं, पावर्स इतनी नहीं बढ़ जाती कि मतलब दीज आर द नॉर्मल पावर्स गिवन टू एनी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, एंड स्पेसिफिक पावर्स एंड स्पेसिफिक थिंग्स आर गिवन टू वेरियस बाय वर्च्यू ऑफ वेरियस कोड्स। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी है, एनडीपीएस एक्ट भी है, बाय वर्च्यू ऑफ दीस कोड्स वेरियस पावर्स आर गिवन। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे पावर्स देते हैं, तो इट डज नॉट मीन कि दे हैव अनलिमिटेड पावर्स, बट दीस पावर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन सच मैटर्स। मतलब ओवर पावर्ड नहीं है, Overpowered नहीं, जितनी बिल्कुल। मतलब उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है, जरूरी क्योंकि है, वो जिन चीजों के साथ डील करती है yes. उसमें ये जरूरी See, है। if the ED was not given the power to arrest a person under PMLA, then what will happen? The consequence would be, if I register a FIR against you, you are accused in PMLA, and if I cannot arrest you, you will start destroying the documentary trail. राइट। You will try to hide the evidences. So the power of arrest also, although it should not be used so lightly, but if it is used, a reason to believe has to be given. Okay, why is the arrest necessary? राइट। अलॉन्ग विद दिस पॉइंट, जो पावर्स ऑफ ईडी की बात करी, ओवर पावर की, जिसपे आपने भी एक्सप्लेनेशन दिया, एक और चीज़ आती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, विच इज़ करेंटली इवन रनिंग इन द न्यूज़, कि ईडी पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्योंकि इसके ऊपर का जो डेटा है जो घूम रहा है वो ये है कि 2014 से, सिंस द करंट रूलिंग पार्टी हैज़ कम इन द गवर्नेंस, 2014 से 121 केसेस हैं जो पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट फाइल किए गए, out of which 115 were against opposite party leaders. This is by the ED. ED ने file करे cases, and मतलब which says that 95% of cases which are filed by ED are against the opposite leaders. और जब ये जिन लीडर्स पे करे गए हैं वो लीडर्स जब पार्टी चेंज करते हैं, तब फिर ये जो ट्रायल चलता है या फिर जो प्रोसीजरल चीज़ है ईडी की, इट मे बी गेट स्लो डाउन और गेट डाइल्यूटेड, ऐसा एलिगेशन है ईडी पे, क्योंकि करंटली जो चीज़ दिल्ली एक्साइज केस के साथ में हुई है और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के साथ में हुई है, उसको लेके ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में चल रही है कि ईडी के ऊपर बहुत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. सो डू यू थिंक See, each and every agency which is into the business of investigating someone is controlled by some or the other government of the state or the center, is it not? Right. अगर आप यहाँ पे पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस में भी डायरेक्ट कंट्रोल होता है होम डिपार्टमेंट का, सेंटर का भी होता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन सीबीआई एक्ट के अंदर, पीएमएलए के अंदर. तो इट डज नॉट मीन कि दे आर एक्सरसाइजिंग illegal rights over those agencies. These agencies are independent agencies. Only the powers to transfer and appoint people are there, but there is no control of investigation which is being conducted by these agencies. So we have to get one thing out of the picture. Okay, ED is not the only agency which is under the control of the government. N number of agencies are there which is under the control of government.
You cannot say that all the agencies are working for the betterment of the current ruling party or political party. Right. It cannot be said like that. Hmm. So this persona which has been created is wrong. And secondly, once the case has been registered and once the final report has been filed, it goes into the domain of the court. It no longer remains within the realm of the ED. Hmm. So once the case is in the court, how would the ED exercise their powers? मतलब पॉलिटिकल पार्टीज अपना इन्फ्लुएंस कोर्ट तक तो नहीं ही लेके जा नहीं लेके जा सकते. एंड ईडी का कोई भी केस एट द एंड कोर्ट में ही And जाना है. therefore, at the initiation, the forefathers of the constitution has separated judiciary from the legislature. For this very same reason. Yes, the judiciary is separate entity into itself. To avoid this influence. Yes, and there is no influence as such. मतलब इन्फ्लुएंस स्टेट का या फिर गवर्नेंस का सिर्फ ईडी में हायर लोगों को हायर करने का हो सकता है. See, I don't think there is an influence of the state government or central government over these agencies also. But just to remove that doubt, the judiciary has been left separated with the legislature. कि ये persona भी किसी के व्यक्ति के माइंड में ना आए. ना कि है ये कि influence हो सकते पॉलिटिकली हैं. इन्फ्लुएंस हो Yes. सकता है ईडी जैसे डिपार्टमेंट्स. सो दिस इज ऑल जस्ट फज. Yes, it is all this was. Rather than we should be happy that at least the cases are being registered against people. Right, that's true. And the only reason because behind this fuzz, behind this hype which has been created, can be that because in money laundering, huge quantum of money is involved, crores and crores. Right now, what the case you are talking about, I think 100 crores of money is involved 100 there. crores involved. So whenever so huge money is involved, somewhere or the other way, politicians are involved. Yeah. I'm not commenting upon any politician in this manner, but some or the other way they are involved. There must be support of someone हाँ, So- इतना to बड़ा affect amount है तो such a होना तो चाहिए. huge amount of money. And right now, the case we're talking about is liquor scam, wherein the state, the involvement of the government was direct because they were the ones framing the excise policy. First they have excise privatized policy. it, Yeah. then they have stopped it. Again that policy was taken back. Taken back. So if Yeah, it in was so good, 2021. then why it was taken back? And it is a prerogative of each state government to issue excise policy every year. Excise policy has been issued here since times immemorial, since the formation of the state. Right, क्योंकि that is one of the biggest source of income for the state For the government. Never has such a case been registered against any government. And MP has seen this because in MP, BJP was in power since 20 years, and at that point of time, the ruling party was Congress, I think. If you remember that. Right. So at that point of time, also when Congress was in power, no such allegation has been leveled against the government here. Right. So it is only an exceptional case. I won't give any more thought to it more than that. Because वो चीज हुई तो काफी complicated है. A First they wrong put was the a policy. wrong is done, and that's why it is prosecuted. We can't be judge. नहीं prosecuted बोल रही हूँ ना मैं. Yeah, हाँ. prosecuted, Convicted नहीं not बोल रही. convicted, right. And the Voice judiciary is also not granted bail because of this reason only. Yeah, the bail has not been granted. Because of this reason. I've read the order of the trial court for grant of bail. Basically, the whole initiation of the case was from the CBI part. When CBI found out that such and such scam has happened, then ED came into the picture. If this crime has happened and proceeds of crime has been used, then ED has also registered a case into it. That is what has So happened. the genesis of this started from the case of the CBI against Manish Sisodia. Right, और वो उसके ट्रेल्स बहुत पीछे से बिकॉज व्हाट यू सेड कि वो पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो बंद क्यों कर दी. दे सेड दैट देयर रीजन वाज दैट द लाइसेंस व्हिच दे सोल्ड दे वर बीइंग रिटर्न्ड बैक टू देम बिकॉज उन्होंने जितनी जो कंडीशंस रखी थी कि हम लाइसेंस आपको बेचेंगे, आप इन कंडीशंस के बेसिस पर लिकर शॉप्स ओपन करो, वो कंडीशंस ऑन ग्राउंड रियलिटी में वर्क ही नहीं कर पा रही थी. उनकी कंडीशंस थी कि 500 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए. उनकी कंडीशंस थी कि उन्होंने जो 32 जोन्स में डिवाइड किया था दिल्ली को, उस हर जोन में कुछ मतलब बहुत सारी लिकर शॉप्स होनी चाहिए. तो वो 500 स्क्वायर फीट का एरिया एक मतलब एक ही जोन में बहुत सारी जगहों पे मिलना, वहाँ पे कहीं हॉस्पिटल्स आ रहे थे, The कहीं only schools आ रहे थे. मतलब it's the only reasoning given by them कि हमारे ठेके बिके नहीं. या एग्जैक्टली. The और जो license- बिके वो उन्होंने surrender वापस हो कर गए. दी. So at surrender the हो time of COVID also, a large number of licenses here has surrendered their license. Did the state government withdrew the policy at that point of time in 2020? It has happened in MP. A large number of licensees has surrendered their licenses because we are not able to work here during the lockdown and after COVID. So have they withdrew the whole policy? No.
And जो You could have license sold your, you could have auctioned your licenses at a better rate. एंड जो लाइसेंस का अमाउंट था अर्लियर, जो उसके लिए टिकट अमाउंट देना था, इट वाज इन लैक्स, बट नाउ जो उनकी 2021 की पॉलिसी थी, दे मेड इट इन करोड़. सो ओनली द बिग बिजनेस लीडर्स एंड द बिग बिजनेसमैन कुड हैव इन्वॉल्व. और इसमें द मेन थिंग विच गॉट इन्वॉल्व कि दे नेम दैट द बिजनेस ग्रुप द साउथ ग्रुप, बिकॉज देयर वर मेनी पीपल, द बिजनेसमैन विच वर इन्वॉल्व इन दिस, जहाँ से मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे, दे वर फ्रॉम द साउथ, सम बिजनेसमैन एंड सम पॉलिटिशियन इन्वॉल्व टुगेदर. सो वहाँ से सिर्फ वो लोग आ रहे थे एंड दैट मनी गॉट इन्वॉल्व. See, these are all the things of evidences which are yet to be proven. Being a lawyer myself, I try to be apolitical and I try to be critical of everything. You know, it's a requirement of my profession. I cannot be inclined to any one party, but without knowing the actual true facts, I cannot comment upon it either. Right. मतलब it is very easy for me to say कि हाँ उन्होंने गलत करा है, फिर मोदी गवर्नमेंट गलत कर रही है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने गलत करा, but I won't say that because it's not right on part of a lawyer to belong to any political party. Because in this field we cannot belong to anyone. It's your duty to be apolitical. Yes, it's my duty. But again, I would say that the court will go to the crux of the matter after the charge sheet is filed. मतलब अभी तक जितनी भी चीजें हो रही है वो as per law ही हो रही है. Yes, as per law. Yes, yes. There is nothing. यार, if the CM was granted bail on the same day, the people would have said कि हमें साला एक साल तक नहीं मिल रही, इनको एक दिन में मिल गई. So why a person is required to be treated differently just because of his post? Correct. He's given equal treatment in the eyes And there is of no law. fault in that. मतलब लॉ completely सही तरीके से फॉलो हो रहा है, उसमें कोई दोहराई And नहीं. I think it's one of the golden ages of this country because the law is being applied to every person. Equally. Yes. What more do we need? Exactly. Okay, so now coming to the last segment of our conversation. The last two questions. The first I have that, as a lawyer, how do you deal with the criminal cases? And what's the process which you go through while dealing with these criminal cases? मतलब सारे criminal cases आ गए. See, I stopped taking criminal cases long back when I had to handle one 376 matter, rape matter. At that point of time, I quit that thing. कि racketeering वाला matter था, 5-6 साल की बच्ची थी, तो at that point of time I said कि नहीं. Right now I take criminal matters, but only which are white collar criminal. Yes, those matter I take, but I don't like to take these matters. Okay. She takes it. Please have the honor to answer these questions. So, I would begin with that there are three aspects of this. Okay. In criminal cases. From 3 point of view, you can see cases. One can be the complainant's point of view. The victim. The victim. Like the complainant comes to you that so and so wrong has been done against me. So then you have to route it through the police. You have to send them through proper channel to police and to court. Then, so this is one victim, one complainant coming to you. That wrong has been done To me. Then other angle is that the accused or a convict is coming to you. And I think it is a major part of our profession that the accused are the only person coming to us, because the right of the victim has been represented by the state. Prosecution. So basically, criminal lawyers are in a sense defense lawyers only. They are only to defend the accused or the guilty. The guilty. Yes, not the guilty, the accused. Guilt is when the court finds them guilty. The accused. And even after conviction also we defend them in the higher courts, in the appellate courts. So when any of the accused, any case of defense is before us, so many a times, most of the time, the accused is in jail, under trial and convicted. He is in jail. तो उसका केस लेकर जो हमारे पास आते हैं वो उसके परिवार के लोग होते हैं. And they're helpless. And they have not done anything wrong, but still they are running here and there from because their family member is in jail. किसी का हस्बैंड जेल में है, किसी का बेटा जेल में है, किसी का भाई है. तो ये परिवार के लोग घर चलाने वाले लोग हैं. उनका केस लेके आते हैं, फीस का इंतजाम उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये कब कैसे क्या हो गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने चीटिंग करके प्रॉपर्टी बेच दी या टैक्स इवेजन कर दिया,
तो उसके घर की महिलाओं को तो पता भी नहीं कि ये हमारा पति इस तरह की या हमारे पिता इस तरह की चीज़ों में लिप्त थे. इवन जो लिप्त होते उनको भी नहीं पता था कि हम लिप्त थे. There was this case against some people here who were basically investment bankers, we can say, who used to guide people how to invest, registered by SEBI and everything. If I have been registered against them, they have been incarcerated. सब रजिस्टर्ड थे तब भी. सब registered थे तब भी हुआ है यहाँ पे ऐसा. तो even they didn't know कि हमने गलत क्या करा है. They didn't follow the law. Yes. And ignorance of law is no good excuse. This is also true. Right. So when अब जब वो तो जेल में जाके बैठ गया, उसने गलत किया, उसको पता था उसने क्या करा, वो जेल में जाके बैठ गया या वो कस्टडी में है. अब ना उससे बात हो सकती है ना उससे संपर्क हो सकता है, बिकॉज वंस यू आर इन जेल देयर इज़ नो फ्री कम्युनिकेशन अलाउड. और उसके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है. और सो इट इज़ अ वेरी टिपिकल सिचुएशन. And family So- suffers a lot. इमोशन गेट्स इन्वॉल्व्ड हियर ऑल्सो. इन द बिगनिंग आपने मुझसे पूछा था कि इमोशनल मैट्रिमोनियल मैटर्स में इमोशनल ट्रोल या क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आता है. आई वुड से मैट्रिमोनियल मैटर्स में तो ठीक है, जो है वो है ही. बट इस तरह के क्रिमिनल केसेस में व्हेन आई सी कि अपार्ट फ्रॉम द क्रिमिनल उसकी फैमिली भी सफ़र कर रही है उतना ही, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग कि जिसने कुछ गलत किया नहीं या जो कहीं से कहीं तक उस क्राइम में इन्वॉल्व भी नहीं था, वो यहाँ वहाँ और उसको समझ भी नहीं आ रहा है. उसको बस इतना पता है कि मेरे आदमी को जेल से बाहर निकाल दो. क्योंकि मैक्सिमम लोग इतने नॉलेजेबल इस फील्ड में नहीं रहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट रीज़न ही नहीं है कनेक्ट करने का जब तक प्रोफेशनलिज्म ना हो. लोग दूर भागते हैं इस प्रोफेशन से. People try to run away from police or from the institution. Right. They don't never want to come into the grass. So उनको पता भी नहीं रहता कैसे क्या होता है, लेकिन फिर जब helplessness देखते हैं ना, that is also, and our code also says कि our ethical duty is to represent a person, irrespective whether he is guilty or not. मैम उस टाइप के केसेस फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपके पास डिफेंस का केस है, ओके, एंड इट इज़ द ट्रुथ, आपको पता है, और जो क्लाइंट है ही हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट हाँ क्राइम तो मुझसे हो गया. अब वो इंटेंट सही है गलत है, जानबूझ के हुआ है गलती से हुआ है, बट क्राइम उससे हुआ है, ही हैज़ एक्सेप्टेड एंड द लॉयर इज़ नोन ऑफ दिस ट्रुथ. अब उस केस में वो जो लॉयर है, अब उस केस में वो लॉयर कैसे डील करता है उस क्लाइंट के साथ में, और उसका प्रोसेस कैसे होता है? So these cases are very easy to defend. How? Where you know the person, the accused is guilty, you try defending the innocent. You will connect yourself to the innocent. कि यार इसका तो ऐसा हो गया. बट वो तो गिल्टी है. हाँ, और गिल्टी आपको को पता भी डिफेंड है. करना इजी होता है कि ठीक है यार जो हुआ तेरी किस्मत का हुआ, आपने करा, आपको सजा मिल रही है उसकी. इनोसेंट को आप अगर प्रोटेक्ट करने आ गए तो आप सोच सकते हो कितना इमोशनल टोल लेंगे आपके ऊपर. यू नो दैट पर्सन इज इनोसेंट, ही इज मतलब फेसिंग हार्डशिप्स. इट इज हार्डर टू डिफेंड. प्रेशर वहाँ ज़्यादा है. बिल्कुल, इट इज हार्डर. बट किसी की मतलब एज अ लॉयर यू आर ऑल्सो पर्सन, सो डजंट इट क्रॉस लाइन्स विथ योर गुडविल और योर एथिक्स? Way back we have stopped मतलब I have stopped judging my clients. Because first of all, if I start judging them, I won't be able to defend them. Right. And that won't be justice to my profession. Fair enough. Okay. Secondly, if at all a client comes to us, a criminal comes to me and says that I have done so and so crime, and yes, I have done it, for which I am being prosecuted. So then we try to find out a way in which मतलब एक बीच का रास्ता कुछ निकाला जा सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्लाइंट आता है और बोलता है कि हाँ मेरे ऊपर टैक्स चोरी का केस चल रहा है और ये टैक्स मैंने चोरी किया है, तो आप जो चोरी किया है वो भर दो, उस पर फाइन भर दो, उस पर पेनल्टी भर दो. आपने किसी के साथ अगर चीटिंग किया है, लाइक धोखा दिया है उसको, या पैसा या प्रॉपर्टी उसकी हड़पी है, तो उसको वो लौटा दो. मतलब आउटसाइड कोर्ट या थ्रू कोर्ट ऑल्सो, थ्रू कोर्ट ऑल्सो किया जा सकता है. इफ़ कोई आपने इस तरह का क्राइम किया है, लाइक आपने किसी को हर्ट किया है,
फिजिकल असॉल्ट, कुछ एक्सट्रीम क्राइम्स लाइक हाँ, मर्डर से मर्डर या डोमेस्टिक वायलेंस है, या वो किसी भी वायलेंट टाइप का एक्ट कोई किया कुछ है, भी हाँ, violent। सो उसमें भी चांसेस हैं कि आप अपना एक्सेप्ट करके, और हम कोर्ट में उसमें प्ली कर सकते हैं कि इसमें गुंजाइश है सुधार की इस व्यक्ति में, ओके, सो इसको कम से कम सज़ा दी जाए। मतलब कैरेक्टर बेसिस पे कैरेक्टर बेसिस पे कुछ- नहीं, बट लाइक उसके असेसमेंट के हैं चीज़ें लॉ में प्रिस्क्राइब्ड, तो to अगर assess the accused। लाइक जैसे देखिए किसी ने मर्डर कर दिया, उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई, या कोई भी ऑफेंस में उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो गई है, तो अब आजीवन कारावास मतलब उसको अंतिम सांस तक जेल में रहना है, बट ये हो गया, उसका सज़ा हो गई, उसको उसके बाद उसकी अपील यहाँ पे चल रही है हाई कोर्ट में उस कन्विक्शन ऑर्डर के खिलाफ, या अपेलेट कोर्ट में उसकी जहाँ भी अपील चल रही है, सो ड्यूरिंग द ट्रायल ऑल्सो वो जेल में रहा होगा, और कन्विक्शन के बाद में अपील फाइल करने के दौरान भी वो जेल में रहा है, उसका कंडक्ट वहाँ पर देखा जाता है कि किस तरह का इसका कंडक्ट रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट ऑल्सो मैनी टाइम्स उसको छोड़ दिया, जेल से छोड़ दिया, सज़ा माफ़ कर दी जाती है। गवर्नर के पास राइट्स हैं इस तरह के, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी राइट्स हैं इस तरह के, सो ऑन स्पेशल डेज अपन 15 अगस्त को इतने कैदियों को छोड़ दिया, वो इस बेसिस पे किया जाता है। सो अगर कोई इस तरह से आके एक्सेप्ट करता है हमारे सामने कि हाँ ये हमसे गलत हुआ है, तो फिर उस गलत को जितना सही हम कर सकते हैं, हमें हमारे स्वयं के विवेक से जो ठीक उस समय लग सकता है, उतना हम उसको करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई आके कहे कि हाँ यार हमने इतना गलत नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। हाँ there was this murder appeal I was contesting before this honorable court, high court के सामने, तो अपील फाइल करी थी and he was convicted of murder। आपने स्टेप वुंड मारे 4-5 मारा, तो 10 साल तक केस चलता रहा, उसको बेल नहीं मिली हाथ में, तो पेरोल पे वो छूट के आया था 2 दिन के लिए, तो मेरे से मिलने आया, मैंने कहा क्या, अरे भाई मैंने मार डाला, सही बताऊं माता आ गई थी, मेरे को पता नहीं, मेरी बीवी को छेड़ा था, गुस्सा आया, मैंने चाकू निकाला, मार डाला। He accepted this truth honestly, and I argued this before the court। It was sudden provocation, बीवी को छेड़ा, चाकू मारते हैं, court understood this thing कि इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बीवी को छेड़ा, ये बात एस्टेब्लिश हुई है, और हाथों हाथ ही मारा है, ऐसा नहीं कि बीवी को छेड़ने के 4 दिन बाद उन्होंने मर्डर करा है, मतलब प्लान्ड मर्डर ऐसा कुछ, ग्रेव एंड हीट ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट। 10 साल की सजा काट चुका था, तो कोर्ट हैज ग्रांटेड हिम बेल ऑन दिस प्रेमाइस। तो ऐसे भोले क्लाइंट भी आते हैं जो मर्डर करके आते हैं, लेकिन बोलते हैं कि साहब मर्डर करा, लेकिन मेरा इंटेंट, मैं मर्डरर नहीं हूँ। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मर्डर हो गया है बट मर्डरर नहीं है। मर्डरर नहीं है वो, क्योंकि देखिए एक मर्डर होने के लिए क्या आपको एक प्री रिक्विजिट माइंड, मतलब मेंसरियस हम बोलते हैं, प्लानिंग, और मेंटालिटी ऑफ माइंड चाहिए आपको कि हाँ आपको मुझे मारना है आज, तो मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा, मैं अपना वहाँ पे तलवार तैयार करके रखी, धार लगा के, आप जैसे आएंगे मैं तलवार निकालूंगा, तलवार सबको मार डालूंगा। राइट, सो दिस इज माय प्लानिंग, तो इट इज नॉट अ सडन एक्ट। सी देयर आर 5 एक्सेप्शंस गिवन टू द एक्ट ऑफ मर्डर, मतलब किलिंग समवन, कि वो कब मर्डर होगा और कब वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। कल्पेबल होमिसाइड इज किलिंग ऑफ अ पर्सन विदाउट द इंटेंट, तो देयर इज एक्सेप्शन गिवन टू द मर्डर, तो ये मर्डर नहीं कहलाएगा हर समय पर। लाइक रेपिस्ट को मैं कभी सही नहीं मानता, क्योंकि इट कैन नॉट बी इन अ सडन एंड ग्रेट प्रोवोकेशन। मर्डर हो सकता है, मारपीट हो सकती है, तो यू कैन नॉट से अ पर्सन टू बी गिल्टी ऑफ मर्डर इवन इफ दे से कि हमने मार डाला है। तो दिस वाज वन बिट आई हैव गिवन यू, वो आया था तो आई कंटेस्टेड दैट मैटर, although I don't contest criminal matters, but I had contested the matter। There is one thing I want to ask you, if you allow me, जो आपने पहले mention करी थी, that few years back you had a criminal case and after that case you stopped taking criminal cases. What was it that triggered within you? There was this case, a bail आया था मेरे पास में, district police से कहीं से, so that case was like this 5-year-old girl was kidnapped and sold multiple times. And sold. 5-year-old girl, and the person who the accused, the person who came to me for the grant for filing of bail was the person who was alleged to have sold that girl multiple times to various persons. He was accused or he was accused. Not convicted. Not convicted. But I did not have the guts to contest that case.
I could not have, in my good conscience, went before the court and said, "Sir, he's not guilty, please." The allegations are so abhorring, what do you say, appalling. Heinous. मतलब आप मन में सोच के सकते हो कि 5 साल की बच्ची को आप बेचोगे इधर जाके यार, मतलब तो at that point of time I said कि no, I won't be able to do this, although it is wrong of me. A lawyer owes his duty to his client, but मेरे से नहीं हो पाया ऐसा. And there are things. I was representing prosecution at some point of time. I was in that. So there I have seen various such cases of rape and वहाँ पर एक इस तरह का केस था कि मुझे बेल अपोज करना था क्योंकि मैं प्रोसिक्यूशन, और वहाँ भी माइनर थी लड़की 10-11 साल की, और जो उसकी फ़िज़िकल मेडिकल कंडीशन, मेडिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो उसको आर्ग्यूमेंट करने में मैंने हाई कोर्ट में सिर्फ इतना ही कहा था कि सर इस केस में तो बेल ना ही ग्रांट करें, तो इस केस में तो बेल नहीं दी जा सकती. एंड द कोर्ट उसको विदाउट एलॉबरेटिंग मच बेल डिनाई की थी. सो थिंग्स हैपन, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का एक हिस्सा अपना हमेशा जोड़ के चली जाती है वो फाइल. हाँ. Okay, so now coming to the last question of this vast conversation. ये क्वेश्चन आपके लिए दोनों तरीके से है, बिकॉज इट विल अप्लाई टू यू इवन एज एन इंडिविजुअल लॉयर एंड इवन एज अ कपल. सो आप दोनों तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं. What changes has come to your personality and your perspective of life after being a lawyer and after having this much experience of this profession? क्या changes आए हैं, मतलब लॉ ये प्रोफेशन परस्यू करने के पहले आप क्या थे और आज का आपका जो सेल्फ है इसमें आपके प्रोफेशन ने कितना हाथ डाला है चेंज करने? फर्स्ट ऑफ ऑल for girls, for females, this is a very empowering profession. Yes. Without having any power, direct power, it is a very empowering profession. क्योंकि जीवन में हर इंसान को, या इंडियन सोसाइटी में अगर अपन बात करें तो उसको थाने और अस्पताल जाने से बहुत डर लगता है. पुलिस, कोर्ट और हॉस्पिटल, वो बहुत अवॉइड करेगा कि ये 3 जगह मुझे जाना ही ना पड़े. और बीइंग अ लॉयर या वकील बनते ही आपको कानून का काफ़ी ज्ञान तो हो ही जाता है पढ़ाई के दौरान ही, तो आपको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ पता चल जाती हैं. सो इट इज़ हार्ड टू एक्सप्लॉइट. सेकेंडली, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो आपको पुलिस का डर खत्म, आपको कोर्ट का डर खत्म. And I think every woman should pursue law for at least 2 years in practice. Yeah, actually. She would be a much better woman. She would be a much bolder woman. And much confident woman at that. So, वकील बनने से पहले मतलब एक बहुत ही इनसिक्योरिटी आपके मन में जो रहती है बीइंग अ वुमन, वो वकील बन के ख़त्म हो गई. सो वंस यू, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, सो थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद, इट इज़ नॉट कि वन फाइन डे आप ऐसा फील करने लग जाते हो. ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअल, बट वंस यू आर देयर, या वंस यू आर हियर आई शुड से, फिर आप चीज़ों को बहुत एक अलग एंगल से देखने लग जाते हो. कि आपको पता है कि अगर आपने कुछ गलत किया या कुछ आपके साथ गलत हो गया, सो यू नो विच डोर टू नॉक. सेकेंडली, एक अलग मेच्योरिटी आती है आपको इस प्रोफेशन के दौरान. अलग मेच्योरिटी मैं इसलिए कहूँगी कि वकील होता है, वो उसकी सनद आज आई हो या वो 50 साल 55 साल पहले आई हो. हाँ, डेजिग्नेशन होता है, सीनियर डेजिग्नेशन ज़रूर होता है, बट इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग है दोनों ही वकीलों को, सीनियर्स को भी, डेजिग्नेटेड सीनियर्स को भी एंड अदरवाइज. सो आपको आपके क्लाइंट की एज मैटर नहीं करती है कि आपके पास किस एज का क्लाइंट आ रहा है. तो आपको उस मैच्योरिटी के साथ में अपने आप को कैरी करके वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है. तीसरा, ये प्रोफेशन बहुत पेशेंस देकर जाता है, आपको सिखा के जाता है.
एक फाइल आपके पास आई है, यू डोंट नो कब खत्म होगा केस, अनंत भी हो सकता है वो, कि वकील साहब चल बसे, फाइल अभी भी जिंदा है. This happens. A lot of lawyers have turned into judges. They've been elevated as judges. And the file is still pending. फिर फाइल का क्या होता है? दूसरी वकील के पास आ जाती है, लेकिन the file is pending. So, और अब मुझे तो मेरा प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों ही वकील बन के मिला है. वकील बनी हूँ तो मैं आज इतना करियर में आगे बढ़ पाई हूँ, और अपना लाइफ पार्टनर भी मुझे इस प्रोफेशन में आने की वजह से ही मिला. Yeah, actually, we have not married each other. We have married into the profession. Yes. It is the truth. Yes. We have married into the profession. कि हमने वकालत से शादी करी एक दूसरे के साथ शादी करते हुए. So this is. So this is there कि आप sorry. तो इसके चलते मतलब पर्सनली इन मी एज अ फीमेल एंड एज अ कपल ये चेंजेस आए हैं, और इसमें से नेगेटिव मुझे कुछ नहीं लग रहा. मैं अगर अभी सोचूं भी कि यार वकील बन के क्या ही नेगेटिव चेंज आया मेरे अंदर, तो मैं कुछ भी नहीं ढूंढ पाऊंगी. Financially, it's hard. Financially, it's Really hard initially. hard initially. हाँ, but with the Because I support remember of family and God's grace. First year in my practice, I earned around $6,000 for the whole year. 2011 में जब आया था मैं, तो 6,000 रुपए मिले थे पूरे साल के मुझे. So it was really hard to survive back then. First few years are very hard in this profession. हाँ, because until you gain the experience, तब तक आप उतना डिमांड नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते. That's why patience सिखा के जाते हैं, धैर्य रख. What's your take on this? I was a question? carefree kid यार back then. 2011 से पहले, if you ask any of my college mates who have not met me after becoming a lawyer, they would say कि ऋषित मस्ती में रहता था अपनी हमेशा. बिंदास. After coming to the profession, the first few years were really hard. It's actually really hard to find a big office, new good office. And eventually, by grace of God, I did. Found 2 good offices. One after the other, I changed my offices, and it had made me serious. Although I think I have become a lawyer in the true sense of the word. बड़प्पना भी आया, seriousness भी आई, responsibility भी आई, और एक लक्ष्य भी आ गया जीवन के अंदर कि हाँ आपको अब यही करना है और जीवन पर यही करना है. और लक्ष्य इस तरह से आया कि हम लोग, जब मैंने आपको शायद से पहले बताया था when we were talking informally, कि हम लोग घर पे भी होते तो यही बातें करते हैं कि इस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ. यहाँ पे होते तो यही बातें करते हैं कि इस केस को कैसे टैकल करना है, डील करना है. सपने में भी मेरे ख्याल से हम कभी कभी यही देखते हैं कि हम जिसके सामने आर्ग्यू कर रहे हैं, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि सपनों के अंदर आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है कि इसको ऐसा आर्ग्यूमेंट करेंगे तो शायद से आपको जीत मिल जाएगी. एंड होता भी ऐसा कभी कभी कि आपको पॉइंट में मिल जाता है वैसे. तो दिस प्रोफेशन इज ऑल टाइम जॉब. इट्स नॉट दैट कि आप 9 to 5 करके आ गए ना घर पे बैठ के सो गए. नहीं, इट्स ऑल टाइम जॉब. क्लाइंट आपको रात को 11 बजे ही फोन लगा सकता है कि सर मेरे साथ इमरजेंसी हुई, आप प्लीज आइए, आप प्लीज मुझे आपका टाइम दीजिए. आपको वो भी करना पड़ेगा. तो and the best part of this profession is that you retire when you want to retire, and I don't want to retire at all. So there is this one joke कि क्लाइंट जो है वो वकील साहब के पास 3 चीजें लेके आता है: फाइल, पैसा और टेंशन. क्रिमिनल, सिविल, एनी केस. तो फाइल जो होती है वो कोर्ट में चली जाती है, पैसा जो होता है वो वकील साहब के घर में चला जाता है, और टेंशन वकील साहब के बाल ले जाता है. So ये एक शायद ड्रॉबैक हो सकता है कि हमारे काम की वजह से हम कई बार टेंशन में रहते हैं. डिप्रेशन सब है और बहुत ज्यादा है, पर वो शायद हर प्रोफेशन में है. I was judging this moot court competition in some colleges. तो I saw the environment was so light and so good. तो I asked the teachers कि आपको कितना टेंशन और एंजाइटी रहता है. उससे एग्जाम होता था, हमें टाइम पे आना पड़ता और चेक करनी पड़ती कॉपी. मतलब दिस इज द हाइट ऑफ योर एंजाइटी. हाँ सर. एंड आई वाज लाइक but then also I would not trade my profession for theirs at all. Because हमने मतलब मैंने ऐसा सोचकर ये प्रोफेशन शुरू नहीं किया था, बट कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को कुछ इस प्रोफेशन के थ्रू देकर जा रहे हो. Yes. And it's a challenge every day यार. रोज का चैलेंज है. रोज एग्जाम में और रोज पढ़ना है आपको. बहुत मजा भी आता है इस चैलेंज में. मतलब ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि मर्डर का केस है, पर हर मर्डर का केस अलग होगा. अगर आप इवन thousands भी केसेस कर लोगे तो भी वो नया होगा. And I think you've seen the books here ना. Yeah. हर बुक में एक केस छुपा हुआ है.
एक या 2 3 4 भी हो सकते हैं और हर किताब अलग लॉ के ऊपर है। तो यू रियलाइज कि हर लॉ को पढ़ना और हर लॉ के ऊपर से पॉइंट निकालना कितना मजा है, मतलब क्या जॉब होगा यार। और फुल ऑफ रिसर्च एंड नॉट जस्ट रिसर्च। एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आपने कुछ ऐसा नायाब सा पॉइंट निकाला जो आपने किसी पुरानी जजमेंट में नहीं देखा। वो पॉइंट निकाल लिया, उसका पॉइंट को आपने अपने केस में फिट कर लिया, आपके मन का आपने सेटिस्फाई वाला काम कर लिया और ये हो गया। लेकिन इट इज नॉट द एंड ऑफ इट। आप जज के पास जाते हो, जज हु इज द मास्टर ऑफ लॉ, वहां पे जाकर उसको अपने पॉइंट पे कन्विंस करते हो ना। bear with me, a kid of 23-24 years is able to convince the judge of such a high stature of some point his research whole night, और उसको जज अगर मान ले तो what is the high of that? Right. वैलिडेशन किस हाई लेवल का मिला। So that is the high of this profession. And plus, after all, whenever you win a case, या एक छोटी विक्ट्री भी या कोई बहुत बड़ा केस भी आप जीत लो, और फीस डजेंट मैटर कि आपने वो फ्री में केस लिया था या आपने लैक्स में उसको चार्ज किया है, बट वो जो एक फीलिंग है कि हाँ यार जीत लिया, दैट इज समथिंग and it is unsaid, untold. आप किसी को नहीं बोलोगे, आप ऐसे कहीं जाके चिल्लाओगे नहीं है यस आई डिड इट It's the inner essence. the satisfaction which it gives you. the highs and lows of this profession are really extreme. Massive. लो तो पूरा इतना लो और हाई तो पूरा इतना है। हाँ, और यही आप कोई मुकदमा हार जाओ तो फिर वो बहुत ही मतलब आपके लिए, but ठीक है, it's like he Hit of the said. cases. Amazing. Okay, with that, let's finally end this conversation today. What was your experience like? तो आप लोग बताइए. For this podcast? Yes, with It was this the first podcast. one for us and it was really good. Yes, it was like Like the these are the things we talk to each pleasure other is about. totally ours. These are the things we want to talk to about with people, but people are getting bored of this talks. And you have provided us with a platform to share our, The opportunity, yes. so Okay, and we're basically, grateful. if I'll say it was one of my dream and ambitious podcast. Like this was the table and this was the conversation which I wanted to have since a long time back. Because वो lawyers के साथ में बैठ के जो ऑब्जेक्टिविटी या फिर जो एक डिस्कशन की डेप्थ आती है वो हर प्रोफेशन के साथ या फिर किसी नॉर्मल इंसान के साथ नहीं आती. सबकी अपने अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं. But I knew that if I'm going to sit someday with some lawyers, even if a single lawyer, then that conversation is going to be special. So it was like my dream I conversation. hope you are satisfied. So I'm very thankful as well as very grateful to both of you Yeah, sorry. agree upon this conversation for this podcast and coming to this show. Thank you for being here. Thanks for Thank inviting you. us here. Thank you. Thank you for watching this podcast till the end. Part 1 and Part 2 इन दोनों ही कॉन्वर्जेशंस में ऋषि सर एंड पूर्वा मैम के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एक एडवोकेट के साथ बात करना या फिर एक ऐसे टेबल पे वो कॉन्वर्जेशन पुल ऑफ करना एक लॉयर्स के साथ में, एडवोकेट्स के साथ में, दिस वॉज वन ऑफ माई ड्रीम कॉन्वर्जेशन और वन ऑफ माई ड्रीम पॉडकास्ट. सो I was very happy recording it. I was very happy editing it. I was very happy throughout this conversation. So मेरे लिए काफ़ी fulfilling, काफ़ी exciting और काफ़ी thrilling था. And even from the point of view of knowledge, even from the point of view of content, ये काफ़ी ज़्यादा exciting, काफ़ी ज़्यादा knowledgeable चीज़ थी. तो मुझे बहुत मज़ा आया इसकी रिसर्च में, इसकी कॉन्वर्जेशन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे ही अलग अलग डोमेन्स, अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग स्टोरीज एंड अलग अलग एक्सपीरियंस के कॉन्वर्जेशन एंड पॉडकास्ट आएंगे. सो मेक श्योर यू डू नॉट मिस देम एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.